एक दस बोलता बोलता oh you started streaming. Excuse me one. If I give you an iron name and if I give you sulfur powder and I tell you to mix it, are they mixed completely? No, right? At least separate the iron name having the sulfur powder. That's all. So like that, nothing but a mixture. You cannot, which we can separate easily by the physical methods. So taking the iron and example Keep in between. Hi all, a very good morning, good afternoon, good evening. Let us understand accounts. Okay, now we are going to deal with account subject. Okay, accounts is going to play a very crucial role in your course. Okay ma'am, this paper is for 100 marks for you. Okay, accounts plus commerce. Accounts is 50 marks and commerce is 50 marks in Telangana state board. वही अगर CBSE and ICSE they write generally for 80 marks. Clear? But हम भी कुछ कम नहीं, हम भी CBSE standards में ही accounts पढ़ने वाले हैं अभी. Okay, so that from in and out of the circle you need to understand regarding what accounts. थोड़े दिनों के बाद में we are going to talk only in what accounts accounting language. समझ में आ रहा? Clear? So अभी accounts समझते हैं. Clear? This is the part of our index.
क्लियर? क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, थियरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग कहाँ से हुआ, ledger, so many things are there. Okay, so today we are going to cover basic accounting terms से start करेंगे हम. क्या है मेरा topic? Basic accounting terms, which starts from 30th page to 65th page. ये देखो. So what we are going to cover? We are going to start with chapter number 2, basics of accounting. Okay, ये basics of accounting कैसे चलेगा and basic accounting terms क्या है वो समझ लें. Okay. So let us understand. Why accounts is required. क्लियर? अकाउंट्स क्यों ज़रूरत है, अकाउंट्स किसको चाहिए, क्यों चाहिए, वो समझेंगे पहले. सी एवरी बिजनेस रिक्वायर्स अकाउंट्स, वो समझ रहे हैं आप. ओके, आप अभी क्या ले रहे हैं, सीए बनने वाले हैं, आईपी मैट करने वाले हैं, सो एंड सो. ठीक है, एमईसी कोर्स लिए, इसलिए अकाउंट्स पढ़ना है सर. सी नॉट ओनली दैट, एक डॉक्टर को अकाउंट्स का ज़रूरत है क्या, हॉस्पिटल रन करता है, सो हाउ मच इज़ कमिंग इन, हाउ मच इज़ गोइंग आउट, डॉक्टर को ज़रूरत है क्या, लॉयर को ज़रूरत है क्या, हाउ मच इज हिज इनफ्लो. एंड एक नॉर्मल बिजनेस टी शॉप वाले को भी ज़रूरत है क्या, चाय दुकान वाला, उसको भी अकाउंट्स करने का ज़रूरत है क्या, हाउ मच इज कमिंग इन. वेरी सिंपल, क्यों ज़रूरत है मैं समझाता हूँ. अब देखो, एक नॉर्मल टी स्टॉल वाला है समझो, डेली उनका सेल्स कितना रहता बोल के सोच रहे हैं आप, हाउ मच अप्रॉक्सीमेटली, टेल 50 50 टीज बेचता, 50 टीज एक 10 मिनट्स में बेच देता रहे वो. हाउ मेनी, 150, 1000, 10,000, or 10,000, you don't know, but that is the biggest business actually. वो एक suppose on a day he is selling 5,000 teas and each tea is suppose 20 rupees. What is his collection? 5,000 into 20 कितना हो जाता, 1 lakh हो जाता. unnecessary we are studying रे, better tea stall business only. एक 10 branches खोल के workers लगा दिए तो हो जाता 1 lakh into 10 कितना, 10 lakhs daily revenue. Clear? This 1 lakh is nothing but revenue. Revenue is nothing but what? Sales. Clear? 5,000 TVs बेचे तो 5,000 into 20 is nothing but what? 1 lakh. 1 lakh money they are getting. 10 branches है समझो मेरे को अभी. 10 into 1 lakh, 10 lakh money I'll get. So पूरा 10 lakh I can take home. Everything is my profit. नहीं, 10 lakhs ऐसे बन जाते. 10 lakhs पूरा बोले तो क्या? 10 lakhs into 30. 3 crores per month. Yearly 36 crores. Richest person एक 10 दुकान खोले तो. अब देखो, नाउ सी, ये 1 लाख जो है ना, दिस इज हिज सेल्स, दिस इज नॉट हिज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं है. क्लियर?
profit ascertainment is very very important for a business. Why? Because you should do the business or you should not do the business. You'll understand what by what profit ascertainment. अब देखो माँ, ये टीस बनाने के लिए उसके खर्चा क्या रहते हैं? लाइक मटेरियल समझ लीजिए, मटेरियल इंक्लूड्स एवरीथिंग, दैट टी पाउडर, मिल्क एंड ऑल, क्लियर. एंड लेबर का कॉस्ट आ सकता, ओवरहेड्स आ सकते हैं. ओवरहेड्स आर नथिंग बट व्हाट? रेंट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. उसके लिए रेंट रहने दो, क्लियर. बाहर से मनी लाया समझो, लोन के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको, वो भी यहाँ रह सकते हैं, क्लियर. सो दीज ऑल एक्सपेंसेस कम टू 80,000 per day. So what is his profit? 20,000. Is it viable business? 20,000 profit बना रहा है daily. 20,000 into 30 days, 6 lakhs. 6 lakhs per month. 6 lakhs into 12, 72 lakhs. Sir, software business से ज़्यादा है sir. So same 72 lakhs only on one branch. अगर 10 branches है तो 72 lakh into 10, 7 crore 20 lakhs. उतना पैकेज IIT में से भी नहीं निकलता. अच्छा है ना सर इनका बिजनेस ही. सी इट रिक्वायर्स व्हाट, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आल्सो. बट इसको ये बिजनेस करना या नहीं करना कब मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ? बाय डूइंग सम बेसिक कैलकुलेशंस, राइट. 1,80,000. सो अब देखो, इसके लिए अकाउंट्स पढ़ने का क्या जरूरत है सर? डायरेक्टली मैं क्या सेल्स कितना है देख लूंगा, मेरा परचेजेस कितने हैं देख लूंगा, ऑल माई मटेरियल कॉस्ट एवरीथिंग आई पुट इन द पेपर. ओके, पेपर में मैं क्या, सेल्स 1 lakh, परचेजेस एंड अदर कॉस्ट एक्सपेंसेस समझ लो, ये 80,000 है बोल के. 1 लाख माइनस 80,000 कितना हो गया? 20,000. ये क्या हो गया? प्रॉफिट. क्लियर. इसके लिए अकाउंट्स पढ़ने का क्या जरूरत है सर? हमारे पापा बिजनेस में जो है ना, वो लोग इजीली कर देते ये पूरा चीज, तो वो तो अकाउंट्स पढ़े ही नहीं, राइट. अकाउंट्स बिना पढ़ के ही ये कर सकते हैं. इसके लिए अकाउंट्स पढ़ने का क्या जरूरत है? देखो व्हाट विल हैपन इज, मैं बताता हूँ. नाउ इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, राइट. 20,000 प्रॉफिट. सो ही वांट टू ओपन 100 आउटलेट्स एक ही साथ, क्योंकि 10 ब्रांचेस लगाया, एक एक ब्रांच में 20,000 इंटू 10 ब्रांचेस कितना हो गया हमारा प्रॉफिट? 2 lakhs is his profit per day. Now he want to open multiple branches. एक ही बार 100 branches open करना बोल के सोच रहा. Now 100 branches open करना बोले तो he requires what? Lot of money, right? Investment. Now ये पूरा business किसका है? जितिन का है. Okay, Jitin made such a beautiful business, nice business. 100 branches he want to open. He want what? Lot of money. Investment का जरूरत है. Where do you go? Investment जब चाहिए बैंक. बैंक से पहले किसके पास जाते हैं हम? अभी आपको एडमिशन चाहिए यहाँ ILT में, Where did you go? पेरेंट्स के पास. So same way, पैसे चाहिए बोले तो first whom will look? मम. मम्मी को जाके पूछेंगे, मम्मी I want to open 100 branches. वहाँ से पैसे मिल गए समझो, खत्म. वहाँ ही आ जाता, राइट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बट मम्मी बोली कि मेरे पास कहाँ है रे, तब किसके पास जाते? डैड के पास जाएंगे क्या? ओ माय डैड लिटिल प्रिंसेस. ये नहीं रहता. डैड बोलते हैं चुपचाप जॉब कर लो, नो बिजनेस, वी नो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन अचीव बाय डूइंग व्हाट, बिजनेसेस. सो डैड बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं चलता. फिर अब कहाँ जाएंगे? रिलेटिव्स के पास जा सकते क्या? वो लोग बोलते हैं ये क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता बोल के बोलते हैं. तो तब आपका आंसर आ गया. कहाँ जाएंगे आप? बैंक. हाँ नहीं, इनके बीच में भी रहते थोड़े लोग, क्या बोल के, फ्रेंड्स टुगेदर कैन स्टार्ट बिजनेसेस. ओके, बड़े बड़े दोस्त. आपको मालूम है सी गूगल वाज इन्वेंटेड बाय हुम? गूगल कौन बनाया? हु इन्वेंटेड गूगल, यू नो? ऐसे ही दो तीन दोस्त मिलके गैराज में काम करके, लैरी पेज, ये लोग मिलके, वो फ्रेंडशिप है उनका. दे हैव डन. सिमिलरली यू आल्सो फाउंड व्हाट, सिमिलर आपके दोस्त आपके विजन को मैच होने वाला फ्रेंड के पास गए एंड यू हैव एक्सप्लेन दिस बिजनेस आइडिया. वो बोला व्हाट अ विजन, अमेजिंग, आपका विजन मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट द मनी बोल के. कोई फ्रेंड बोलता क्या, मेरा फ्रेंड क्या करा बोल के बताता हूँ. सी ही टोल्ड मी व्हाट, यू नो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अकेडमी बोल के. मैं बोला अकेडमी स्टार्ट करना है, मेरे को पैसे चाहिए बोले. तो वो बोला कि अरे वेरी नाइस रे, दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन इट.
मैं बोला एक 10 लाख 20 लाख दे दो, हाँ वो बोला कि क्या, अरे मेरे को एक 10,000 अर्जेंट चाहिए वो दे दो बोल के बोला, आई गो एंड आई ब्रिंग द लोन ऑन माई नेम, वो ये बोल के 10,000 ले लिया. नेक्स्ट डे ही डिड नॉट कम ओनली. आई वेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बट उल्टा क्या हो गया वहाँ, मेरे से ही पैसे लेके गया. सो फ्रेंड्स ऑल्सो व्हाट, नहीं चला. तब किसके पास जाएंगे, बैंक. जैसे आप बोले बैंक, बैंक डायरेक्टली लोन दे देते क्या आपको, बैंक विल आस्क फॉर व्हाट, कोलेटरल सिक्योरिटी. सर कोलेटरल सिक्योरिटी ये क्या होता सर, कोलेटरल सिक्योरिटी इट इज नथिंग बट समथिंग लाइक, अभी देखो सिक्योरिटी, आपको लोन देना है बैंक, राइट, व्हाट इज अश्योरेंस फॉर देम, लैंड पेपर्स, मॉर्टगेज कर लो कुछ, समथिंग लाइक दैट, राइट. बट उतना रहे तो हम उनके पास क्यों जाते, राइट. सो बैंक में ही ढूंढेंगे विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी एश्योरेंस, कुछ लोन मिल सकता बोल के पूछेंगे, वो अगर दिए समझो बैंक में काम खत्म. अगर बैंक में भी लोन नहीं मिला आपको क्योंकि कोलेटरल पूछे थे, आपके पास कोलेटरल नहीं है, सो किसके पास जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे होते सर, क्या होते सर, ये लोगों का काम ही होता है क्या, फाइनेंस देना, मनी देना, लोन देना. क्लियर. बैंक में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस रहते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दिस रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस आर लो. क्लियर. सो ये रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस लो रह के आपको लोन यहाँ मिल जाएगा. सर यहाँ भी नहीं मिला तो where you will go, you will find some other source or whatever source and you will get money and you are going to do the business if you are a good entrepreneur. Clear. Now entrepreneur बोले तो क्या है सर, anyone is starting his vision, his mission, एक new idea लेके business कुछ कर रहा समझो, it might be new idea, it might be an existing idea, उसको entrepreneur बोलते. Now here I am an entrepreneur, I have started this academy, okay, clear, like that. Who is an entrepreneur, you understood, right? Now basically accounting terms के लिए ये पूरा क्यों पढ़ा रहे. अब देखो यहाँ पर बहुत है. फर्स्ट वन इज व्हाट, एंटिटी. व्हाट इज दैट मा, एंटिटी. व्हाट इज एंटिटी. अब देखो, नाउ हु वाज डूइंग बिजनेस, जितिन वाज डूइंग बिजनेस. हु इज द ओनर, जितिन. सो इसको बोलते सोल प्रोप्राइटरशिप. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट मा, सोल प्रोप्राइटरशिप. मतलब क्या है, सिंगल ओनर बिजनेस है ये. हेलो చెప్పు తింటా నేను క్లాస్లో ఉన్న క్లాస్ అయిపోయినాక. हेलो, ये देखो मैम, सोल प्रोप्राइटरशिप बोले तो क्या है, सिंगल ओनर. क्लियर. नाउ जितिन क्या करा, ही हैज टेकन हिज फ्रेंड्स आल्सो इनटू बिजनेस. जितिन के साथ ऐसे लोग. क्लियर. कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ, जितिन एंड मोर देन 2. ये लोग क्या, दिस इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप. नहीं, इसको क्या बोलते, पार्टनरशिप. क्लियर. पार्टनरशिप के बाद में अब नॉट ओनली दिस, ये बिजनेस बहुत बड़ा बन गया. नाउ हियर देयर आर like suppose more than 20, more than 30, more than 50, more than 100. सो इन लोगों को क्या, पार्टनरशिप नहीं. अभी क्या बनाना पड़ता सर, सीओ डॉट. व्हाट इज सीओ डॉट, इट्स कॉल्ड एज अ कंपनी. क्लियर. नाउ कंपनी में आता प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. नाउ प्राइवेट कंपनी क्या होता, पब्लिक कंपनी क्या होता. प्राइवेट कंपनी बोले तो लिमिटेड पीपल समझ लो. पब्लिक कंपनी मीन्स व्हाट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. Clear. Then people will go into what, public company. Now आपका बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज इन्वेस्टेड अमाउंट इन योर बिजनेस. आपका कौन सा कंपनी बन जाता, गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी भी हो सकता, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी भी हो सकता. क्लियर. लाइक दिस. सर एक एंटिटी बोल के बता रहे हैं, वाई यू आर टीचिंग दिस ऑल्सो. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है, हमें मालूम क्या होता. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, जस्ट इतने टर्म्स है जनरली. टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में सिंगल ओनर बिजनेस रह सकता, पार्टनरशिप बिजनेस रह सकता, कंपनी रह सकता, प्राइवेट पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी रह सकता. क्लियर. ये पूरे ही एंटिटी है. एनीथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटिटी. सिंगल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एंटिटी. पार्टनरशिप इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एंटिटी. कंपनी इज आल्सो व्हाट, एंटिटी.
एंटिटी बोल के बोल सकते हैं आप. एंटिटी इज नथिंग बट व्हाट, अ बिजनेस यूनिट. व्हाट इज देयर मोटिव? प्रॉफिट. क्लियर? सो दैट इज नथिंग बट एंटिटी. अब एंटिटी के बारे में समझेंगे हम. प्लीज, एन इकोनॉमिक यूनिट may be business enterprise or non-business entity. Clear? An entity means any economic unit which performs economic activities. A business entity means an enterprise established in accordance with the law to engage in business activities. Example what? Reliance Industries Limited, Bajaj Auto Limited, ITC Limited. A non-business entity is entire setup in accordance with the law engaged in what? Welfare. आप profitable business बनाओ, clear? Entity है. Non-profitable business बनाओ, वो भी क्या है? Entity. Clear? Entity means what? Everything. समझ में आया entity? Clear? Understood? Did not understand? Now Jitin सेम टी बिजनेस कर रहा, फ्री टी. व्हाट? कोई भी आए तो उसको क्या है? टी इज फ्री. डेली 20,000 की जगह 2 लाख टी बेच रहा वो, बट एवरीथिंग इज फ्री. देश को क्या आगे बढ़ाने के लिए चाय पी के जाओ, दैट इज हिज टैगलाइन. एंड एवरीवन फ्री टी मिल रहा, बहुत सारे कस्टमर्स भी आ रहे. Is he generating any revenue? सेल्स ही नहीं है. सेल्स है बट मनी नहीं है वहां. प्रॉफिट है क्या यहाँ? नहीं है. वाई इज ही डूइंग दैट? सर्विंग द नेशन. नेशन के सामने पहले मैं रहता, बॉर्डर के सामने आर्मी है ना, ऐसा ही ये क्या टी स्टॉप के सामने वो है. एंड ही इज गिविंग व्हाट? फ्री टी फॉर एवरीवन. क्लियर? सो ये क्या चला रहा था? एनजीओ के जैसा कर रहा था. इट्स अ नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस. क्लियर? जनरली ये बिजनेस में अच्छा कॉर्पोरेट मोटिव रहना चाहिए, सीएसआर मोटिव, बट ये नहीं था इसमें. इट्स ओके, फाइन. क्लियर? दिस इज द थिंग. एंटिटी समझ में आया? एंटिटी माइट बी व्हाट? बिजनेस विथ प्रॉफिट मोटिव और बिजनेस विथ व्हाट? नॉन प्रॉफिट मोटिव एज वेल. स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? एंटिटी. समझ में आया? नहीं आया? क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. इन हिज बिजनेस व्हाट इज हिज ट्रांजैक्शन? कैन यू टेल मी? इसका बिजनेस क्या था? टी बिजनेस. व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्वड ओवर हियर? क्या क्या रहता है उसके बिजनेस एक्टिविटी में? हाँ, क्रेडिट डेबिट नहीं, उतना जाने का नहीं. पहले आपको मनी कहाँ से आ रहा? कस्टमर से ही आता रहे पैसे. क्या क्या करके आ रहा? हाँ, वेरी गुड, दैट्स इट. सेल्स. वो सेल्स करना बोले तो पहले आपको बनाना चाहिए, राइट? बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल खरीदना और प्लेस के लिए रेंट पे करेंगे, एक्सपेंस, और लेबर को वेजेस देंगे या सैलरी देंगे, दोनों में एक कुछ करेंगे. क्लियर? प्रोफेशनल लेबर है समझो, सैलरी दे देते हैं. डेली लेबर है समझो, डेली वेज दे देते हैं उनको. क्लियर? और गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस पे करेगा. क्लियर? रोड पर लगाने तो कहाँ पे भी लगाना दो, यू नीड टू पे व्हाट? जीएसटी. क्लियर? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ना, आपका सेल्स वैल्यू क्रॉस हो गया समझो, कंपलसरी यू आर अंडर व्हाट? जीएसटी. जीएसटी तो पे करना पड़ेगा आपको. क्लियर? यू आर अंडरस्टैंडिंग? दीज ऑल आर व्हाट? ट्रांजैक्शंस. ये किस ट्रांजैक्शंस है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट? क्लियर? ये हो गया आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन. व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और services. Business transaction is a financial transaction or economic event entered in two parties that initiates accounting process of recording it in the books of accounts on enterprise. It is financial event expressed in terms of what? Money, which brings change in financial position of an enterprise. Now Amrit sold 10,000 goods to Gurman, and it is a transaction. Both Amit bill of goods and Gurman what? Purchase of goods. एक को सेल रहेगा, बिल नहीं है, ये सेल है, लिखो. टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, टू पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन रहेगा. अब आता, अभी तक मैं बहुत समझा रहा था. अकाउंट. व्हाट इज एन अकाउंट? व्हाट इज एन अकाउंट? ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है ना, उसके लिए आप क्या बनाएंगे? सेपरेट अकाउंट बनाएंगे. आपके पास कितने परचेजेस हुए, कितने सेल्स हुए, कितना रेंट कलेक्टेड, रेंट पेड, लेबर कितना है, उनको वेजेस कितना दे रहे हैं, उनका सैलरीज क्या है, उन सब क्या क्या बनाएंगे हम? अकाउंट. अकाउंट इज नथिंग बट इट इज रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शंस अंडर द हेड. क्लियर? इट इज रिकॉर्ड ऑफ व्हाट?
transactions under the head. Now it is a record of transaction that might be both cash or credit. Now what's a cash transaction, credit transaction? ऐसा क्या होता cash transaction and credit transaction? सीमा. Now customers जितिन के पास आए, clear, and they told that I want 10T, clear. 10T पे करने से पहले जितिन क्या कर रहा था? सर प्लीज टेक टोकन, टोकन सिस्टम था. सो टोकन ले लिए समझो, इमीडिएटली क्या पे कर दिया हम? पैसे पे कर दिया. ये क्या ट्रांजैक्शन बन जाता? कैश. वेरी गुड. एनी डाउट्स? बट मैं उसका रेगुलर कस्टमर था. आई वॉज हिज रेगुलर कस्टमर. आई टोल्ड जितिन तू मेरे पास ही पढ़ता, तेरे को मैं पैसे क्या दूंगा, अगर दे दूंगा भी तो मैं क्या बोला कि आई विल गिव यू टुमारो. क्या बोल के बोला मैं? टुमारो. आज तो उसके टी गए, पैसे आए क्या? दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हिंदी में क्या? उधार बोल के बोलते. क्लियर. सो यू आर गोइंग टू पे व्हाट लेटर. आई टोल्ड दैट व्हाट बाय बाय, बाद में पे करूंगा. That is nothing but what? Credit transaction. I told that I'll pay you tomorrow, I'll pay you after 5 days, I'll pay you after 10 days. These transactions are nothing but called as what? Credit transaction. Cash transactions means immediately paying cash. Credit transaction क्या होता? Later. That's it. Any doubts ma? आया समझ में? ये clear? Cash transaction and credit transaction समझ में आया आपको? Cool, right? नेक्स्ट देखो कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? ये ऑलरेडी समझा दिया क्या मैं? व्हाट इज कैपिटल? व्हाट इज द टू टाइप्स ऑफ कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. कौन बोले? कल बिजनेस स्टडीज में पढ़े क्या? वो टेंशन है वो ना. इट्स ओके फाइन. कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? Owner. Owner. Owner is running the business. It is called as capital. He is not called as capital. See, the amount invested by the owner for starting the business, that is called as what? Capital. It is not owner. It is the amount bought by the owner. Okay? To start the business. Clear? Now that can be in the form of monetary amount form, that is in the form of cash, or else it can be in the form of what? Kind. Sir, capital, cash and kind. Now what is this, sir? I did not understand. When owner brings money to start a business, that is his capital, and when owner brings capital in the form of kind, what is kind means? He is having plant and machinery, he bought that. He is having some furniture, clear, he bought that. Still it is what? Capital only, right? Clear. अभी I want to start ILT academy. यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? इतना बड़ा academy देख रहे हैं. You can see chairs, AC, fans, ये पूरे यहाँ पर थे क्या पहले? So what? I bought a lot of money and I have spent on this what? TV, projector, smartphone, ये recording setup, everything, right? Clear? That is what the amount of money I bought. And later I have invested into the business. The amount invested by the owner into the business is called as what? Capital. I bought what? Money. अगर मेरे पास ये पहले ही था समझो academy setup, I am shifting this whole academy into somewhere else. Do I need to bring any money? No. थोड़ा money लाया तो बस है. Remaining पूरा क्या है मेरे पास? Furniture is there, lights are there, ये fan है, ये TV है, ये पूरा क्या मैं दूसरे जगह shift कर दे रहा हूँ. Still I have bought what? Investment into my business. My investment is in the form of what? Kind. What is that kind? Kind is nothing but other than cash. Kind is nothing but what? Clear? अब देखो मैम. So let us understand. The capital
is the amount invested by the enterprise by the proprietor in the case of what proprietorship, or by partners in the case of partnership business. It may be in the form of what, money or assets. Money or assets means what, money means cash, assets means what, kind, लैंड रहने दो, बिल्डिंग रहने दो, प्लांट एंड मशीनरी रहने दो, फर्नीचर रहने दो, वो पूरा क्या, मॉनेटरी वैल्यू. क्लियर. इन द केस ऑफ कंपनीज contributors of capital are may be known as what, shareholders. सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. अब देखो माँ, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में मैं क्या बोल के बोला, वन इज प्रोप्राइटरशिप. हाँ, सो उसमें ओनर को क्या बोलेंगे हम, सोल प्रोप्राइटर. क्लियर. नेक्स्ट कौन सा बिजनेस रहता बोल के बोला मैं, पार्टनरशिप. उसमें ओनर्स को क्या बोलेंगे हम, पार्टनर्स. वही कंपनी में क्या बोलेंगे हम उनको, नो, शेयर होल्डर्स. और एम्प्लॉयज हर जगह रहते, आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज ही रहते, बट ओनर को क्या बुलाते वो समझ में आना ना. द ओनर इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटर इन द केस ऑफ व्हाट, सोल प्रोप्राइटरशिप. सिंगल ओनर वही रहता ना, उसको सोल प्रोप्राइटर बोल के बोलते. वही अगर पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, पार्टनर्स. सेम वे इन द केस ऑफ कंपनी, कंपनी में क्या बोलते हैं उनको, perfect. Any doubts? Did not understand. Clear. There is one business entity concept I don't want you to learn now. Capital is equal to assets minus outsider liabilities. यहाँ is equal to लिखो. Capital is equal to assets minus outsider liabilities. Now what is this capital is equal to assets minus outsider liabilities? So let us break this. कैपिटल समझ में आया, व्हाट इज कैपिटल में, yes, the amount of investment util, the amount of investment bought by the owner to start the business, that is called as what, capital. This investment might be in how many types, one might be cash and another might be what, kind. दोनों भी क्या है, कैपिटल है. क्लियर. ये आ गया. अब आता assets. What are assets sir? Assets के लिए ये चार्ट बना लो. Assets can be classified into what, fixed assets and current assets. अभी के लिए क्या, fixed assets and current assets. This fixed assets is also called as what, non-current assets. Clear. Assets can be categorized into how many types? One is current asset, next one is what, non-current asset. Non-current asset is also called as what, fixed asset. Clear. Now fixed asset can be further classified into what, intangible. Clear. One is tangible asset and another one is what, intangible fixed asset. Now what is tangible fixed asset and what is intangible fixed asset, वो भी देखेंगे. Clear. Very simple. Okay. Now देखो, मैं एक ड्रॉ करूंगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करो. अरे ठीक है, लीव ऑफ, माय ड्राइंग इज वेरी वर्स्ट. ठीक है, ये देखो माँ, ये है फुटवेयर, समझ लो. ओके. इसके ऊपर ये क्या है, क्रॉक्स. क्रॉक्स नहीं, वो फ्लिप फ्लॉप से वो रहते ना, उसका क्या बोलते हैं, दिस वन, फ्लिप फ्लॉप्स ओनली, राइट. ओके. ये फ्लिप फ्लॉप जनरली कितना कॉस्ट करेगा बोलो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप, 800, 500, 300, 800, राइट. क्लियर. बट वही फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ऐसा कुछ सिंबल है. क्लियर. 10,000 हो गया, क्या हो गया 10,000. अरे फ्लिप फ्लॉप भी तो ना, पहले भी फ्लिप फ्लॉप था, अभी भी फ्लिप फ्लॉप ही है, राइट. एक सिंबल ऐड होने से 10,000 कैसे बढ़ गया, ब्रांड. व्हाट इज दैट, ब्रांड. देख पा रहे क्या, फील हो पा रहे क्या, मोर देन दैट. सी यू कैन सी इट मोर देन योर विजन. नो, यू कैन फील इट. आपका हार्ट पहले बोलेगा. क्लियर. क्या है ये विजन. मोबाइल फोन कितना रहेगा जनरली, 20,000 से स्टार्ट हो जाता सर, 10,000 से भी स्टार्ट होते, 6,000 से भी स्टार्ट होते, बट वही मोबाइल के पीछे थोड़ा ये सिंबल एक रहता. हाँ, ये क्या है, एप्पल. हाँ, डोंट वरी, एप्पल ही है वो. ओके. एप्पल रहे तो ये कॉस्ट कितना बढ़ गया,
1 लाख, ऐसा क्या स्पेशल है रे इसमें? इसमें सिंपल ही है, मैं तो ऑरेंज बना देता, ऑरेंज कंपनी बना के ऑरेंज फोन बोल के भेज देता। क्लियर, मैंगो बना देंगे, मैंगो फोन्स, वो एप्पल बना के उतना बड़ा बन गया। क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस मा हियर? ओह ब्रांड, ऐसा ब्रांड कैसे बन गया? क्वालिटी, क्वालिटी, हाउ डिड दे प्ले, यू नो, स्टेटस सिंबल है ये एप्पल बोले तो। अर्लियर इट वाज ओनली रिच पीपल यूज टू हैव व्हाट, एप्पल आईफोन्स, बेचारे दूसरे के पास तो है ही नहीं था। क्लियर, अभी तो एवरीवन हैव, it's nothing rich or no one is rich, no one is poor, everywhere you can see apple iphone, but once upon a time it was like a status symbol, apple iphone बोले तो apple iphone बोल के बोलते थे, अभी कुछ भी नहीं है, iphone is common। so आप देखो यहाँ पर these assets जो है ना, ये ब्रांड बिल्डिंग करने में हेल्प कर रहे ना, those are called as intangible assets। clear, the examples of intangible assets are goodwill, patent, trademark, copyright, trade secret, these all are what, intangible assets। now what is trademark, what is copyright, what is trade secret, वो समझ लेंगे। clear, so first trademark समझ में आया, बाजू में वो सिंबल है ना, that is only trademark, brand mark, बट वैल्यू क्या बहुत बढ़िया उस कंपनी का, बाय यूजिंग व्हाट, ट्रेडमार्क। नॉर्मल फोन, एप्पल फोन, बहुत फर्क है सर, एप्पल सिंबल है उसके ऊपर, सी द क्वालिटी मैटर्स देयर। ओके, दे हैव बिल्ट अ ब्रांड इन सच ए वे दैट व्हाट, यहाँ पर अच्छा ट्रेडमार्क बना लिया, राइट। क्लियर, नॉट ओनली दैट, कॉपीराइट्स है, ट्रेड सीक्रेट समझ लेंगे पहले, फिर इंटेंजिबल एसेट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सीमा, डिड यू एवर ड्रिंक ए कोका कोला? क्लियर, आप एग्जैक्टली कोक पीने के बाद एक 100 कोक्स पिए समझो, on a daily basis you have drunk daily a coke, 100 days coke पिया, 101th day can you make coke? no, why can't? okay सर हम तो कॉमर्स वाले हैं, हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, आप नहीं बना सकते, एक टॉप शेफ को ले दिए, वो 100 डेज पिया, 101th डे कैन ही मेक कोका कोला? हाँ, कहाँ बनाता मैं, अगर बनाया तो कोका कोला का जैसा कंपनीज बनते ना। क्लियर, वहाँ क्या है मालूम उनका ट्रेड सीक्रेट? द फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? द फॉर्मूला। कोको कोला मालूम है ना आपको, कोक, उसको देख के एक बड़ा कंपनी ने और एक ब्रांड स्टार्ट करा कॉल्ड एज कैंपा। डू यू नो कैंपा ड्रिंक्स? इट इज एग्जैक्टली व्हाट, जैसा स्प्राइट रहता कैंपा का वो स्प्राइट रहता, जैसा थम्सअप रहता वैसा ही, जैसा पेप्सी रहता वैसा ही। यू नो, एक थम्सअप है और एक पेप्सी है। क्लियर, डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज इन दिस बोथ? हाँ, कलर, कलर सेम, अरे टेस्ट में भी थोड़ा बहुत तो सिमिलर ही रहते ना। ओके, ऐसा नहीं। मजा, स्लाइस, डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज? मजा एंड स्लाइस में कुछ भी नहीं है सिमिलैरिटीज, सेम मैंगो जूस ओनली, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता, थोड़ा डिफरेंट रहता। थम्सअप एंड पेप्सी इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली। और एक है स्प्राइट एंड और एक है माउंटेन ड्यू। डू वी सी एनीथिंग सिमिलैरिटीज हियर? स्प्राइट, यहाँ पर 7 अप समझ लो, स्प्राइट 7 अप में या स्प्राइट माउंटेन ड्यू में। क्लियर, और एक है फैंटा, मिरिंडा, इनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज देखे होंगे आप, पल्पी ऑरेंज एक जगह रहता। ओके, सो दीज बोथ आर होम, यू नो, ये पूरे एक ही ब्रांड का है, थम्सअप, मजा, स्प्राइट, फैंटा, ये पूरा एक ही ब्रांड का है। पेप्सी, स्लाइस, माउंटेन ड्यू, 7 अप, मिरिंडा, एंड यहाँ पे नींबूस, वहाँ पे मिनट मेड, पल्पी ऑरेंज। क्लियर, सो दीज ऑल आर व्हाट, वन ब्रांड कियोस्क्स ओनली। क्लियर, ये पूरा एक ही ब्रांड का है, दैट इज पेप्सी कंपनी, एंड दिस इज कोक प्रोडक्ट्स है, कोका कोला यहाँ रहता। क्लियर, नाउ ये दो ही कंपनी है लीडिंग प्लेयर्स, थर्ड कंपनी आया अभी कैंपा बोल के, कुछ चल रहा, बट इनका जितना चलता क्या, अरे थम्सअप नहीं है तो यू विल इमीडिएटली टेल दैट व्हाट, पेप्सी, पेप्सी नहीं है तो क्या, थम्सअप। या जहाँ स्टोर में पेप्सी, स्लाइस, माउंटेन ड्यू मिलते ना, वहाँ ये नहीं मिलते, जहाँ ये मिलते ये नहीं मिलते। दिस बोथ आर व्हाट, सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर, सर व्हाई आर यू टीचिंग दिस? कैन आई मेक ए पेप्सी? कैन आई मेक ए थम्सअप?
कैन आई मेक स्लाइस, कैन आई मेक माजा, ऐसा अगर मैं बना सकता समझो, वो जो कंपनी रहते क्या, मेरा भी कंपनी रहता, हर एक का कंपनी रहता. सी व्हाट इज देयर इन देयर प्रोडक्ट, that is nothing but their formula, their what formula, that is their trade secret, that is their trade secret. इंटेंजिबल एसेट है राइट, उनका फॉर्मूला अगर कोई ब्रेक कर सका समझो, हर एक जगह क्या थम्स अप मिल जाता, फैंटा मिल जाता. सी घर में पिज्जा बनता राइट, घर में भी पिज्जा बनते, बट डोमिनोज का पिज्जा ही क्यों खाते, पिज्जा हाँ हाँ रेसिपी एंड ऑल टेस्ट, उनका ट्रेड सीक्रेट है. क्लियर. ओके पिज्जा ब्रांड्स बोलो, डोमिनोज, पिज्जा हट, और कुछ फार्म का वो कुछ रहता है, एक दो है ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मालूम है, डोमिनोज एंड पिज्जा हट. पापा जोन्स कुछ रहता शायद मेरे ख्याल से, पापा जोन्स पिज़्ज़ा. मैकडोनल्ड्स में पिज़्ज़ा नहीं रहता ना, मैकडोनल्ड्स इज फेमस फॉर बर्गर. हाँ पापा जोन्स एक रहता, लापिनोस पिज़्ज़ा रहता. हाँ ये 3-4 और कुछ नहीं है क्या. घर जाते जाते बहुत सारे पिज़्ज़ा सेंटर्स रहते, बहुत सारे आउटलेट्स भी रहते. क्लियर. बट why these 2 or 3 are pretty famous, because of their recipe, because of their trade secret. मेरे को भी पिज्जा बनाना आता, बहुत अच्छा बनाता हूँ, डोमिनोज के जितना अच्छा बना सकता क्या. they have their own magic in that product. clear. वो क्या है, trade secret. understood what is a trade secret, it is the secret formula. clear. understanding or not clear. similarly goodwill, what is goodwill, ये क्या है समझेंगे. हाँ ये देखेंगे, ILT Academy. I have set up this ILT Academy. Now आपको क्या क्या कॉस्ट दिख रहे हैं यहाँ, फॉर सेटिंग अप कॉस्ट, ये पूरे वॉल समझ लो, ये पूरे ये समझ लो, वायर समझ लो, एवरीथिंग आई मेड. ये एम्प्टी फ्लोर था, उसमें पूरा हम ही बनाए. यहाँ क्लासेस समझ लो, एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग वी हैव डेवलप. इसके लिए मेरे को कुछ खर्चा हुआ. ओके सपोज दैट होल कॉस्ट इज 1 CR. नाउ आके कृष्णा बोली कि सर आपको 1 CR हुआ ना, 1.5 CR दूंगा, आप मेरे को ILT अकेडमी दे के चले जाओ. विल आई एक्सेप्ट. अरे 1 करोड़ ही हुआ ना मेरे को, 1.5 करोड़ मिल रहा है, सीधा सीधा कितना प्रॉफिट है, 50 लाख. शी इज टेलिंग दैट आप मेहनत करें ना, ले लो 50 लाख ले लो ज़्यादा. विल आई गिव इट फॉर 1.5 CR, 50 lakhs मिल रहे ना मेरे को, विल आई गिव इट. वाई. अरे रेंट का नहीं, ये खरीदने के लिए नहीं, खरीदने के लिए 4 करोड़ लगते. हाँ नहीं नहीं, पूरा पूरा फ्लोर बनाने के लिए एवरीथिंग इट कॉस्ट मी अराउंड 1 CR प्लस ओनली. सो इसलिए यू टोल्ड 1.5 CR. विल आई गिव यू, आई वोंट, आई मनी यू आर गिविंग, नो यू आर पेइंग प्रीमियम ऑल्सो. यहाँ पे ज्यादा ही दे रही ना वो, 1 CR की जगह 1.5 CR. ओके अमाउंट 1.5 CR नहीं 5 CR. हाँ आई विल गिव. हाँ ठीक है थोड़ा बढ़ाएंगे 15 CR. नाउ 1 CR की जगह 15 CR शी इज रेडी टू पे मी. शी टोल्ड फ्रॉम टुमारो ILT इज माइन, तुम जाओ. विल आई गिव इट. हाँ प्रॉबेबली यस नो, 1 CR की जगह 15 CR में दूसरी जगह जाके PLT बोल के डाल दूंगा समवेयर. क्लियर. सो व्हाट शी इज डूइंग ओवर हियर, 1 CR का बिजनेस, हाउ डिड शी वैल्यू एट 15 CR. 1 करोड़ का बिजनेस था, शी इज ऑल्सो हैविंग 1 करोड़, मीन्स शी कैन ऑल्सो सेट अप दिस. बट 1 CR को वाई शी वांट टू गिव 15 CR, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टेड बिजनेस करा एंड वी आर मेकिंग व्हाट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. यहाँ पर बच्चे आ रहे, वो बच्चों को फिर से पुल करना बोले तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पर ऑलरेडी बच्चे हैं, इवनिंग के टाइम पर तो बहुत फुल हो जाएंगे. क्लियर. सो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वी आर मेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. सो बेस्ड ऑन माई प्रॉफिट शी वैल्यूड एडिशनल अमाउंट. दिस एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट, गुडविल. हर एक बिजनेस को गुडविल रहेगा क्या, ओनली profitable business which are having very good name, though it might not be profitable, but when it has a good name then goodwill might be possible in such businesses. You are thinking Swiggy and Zomato profitable business है क्या. हाँ देख लो कितना बड़ा बड़ा बिजनेस है ना सर. ओके आप आज मैं आपका खोल देता हूँ.
स्विगी प्रॉफिट देखेंगे एक बार. ये है स्विगी का रिपोर्ट पूरा गूगल में ही है. यहाँ देखो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना बड़ा है सर. वन कंपनी रिपोर्ट. इनको भी है देखो यहाँ क्या क्या है देखो. ट्रेड पेएबल गुडविल कुछ था. गुडविल डायरेक्टली इमेजेस में देखेंगे एक मिनट. व्हाट इज दिस यू नो मा. हाँ कितना था Q3 में -574 -799. Those are crores. It was having a loss of how much? 574. This year it was what? 799. Sir, they are doing business. Still in your mobile phone, Swiggy is there. Zomato is there. Profitable business ही नहीं है सर, ये लॉस मेकिंग बिजनेस है. बट स्टिल उसका शेयर प्राइस हाई ही रहता. स्टिल उसको गुडविल है. वाई? Though it is not a profit making business. Popular, very good. There is what? Image. There are number of users who use that. When you want to book food, no, what are the options you are going to get in your mind? Swiggy, Zomato. और नहीं है क्या? बहुत है. फूड पांडा है. ये स्विगी जोमेटो से पहले आया था फूड पांडा. वो देखते भी नहीं है, वो था बोल के भी नहीं मालूम आपको. सी ओनली 2 players, स्विगी एंड जोमेटो. पेटीएम food is there. Indian government also has done some app for this food, but वो हमें मालूम ही नहीं. Only the thing we know what? Swiggy and Zomato. We are thinking that what ये बहुत बड़ा profitable business. नहीं, loss making business है. But still it has goodwill. Why? Because users, number of people having that app. Clear? उनको भी goodwill है. इसलिए उनका share price भी क्या है? बहुत high है. Clear? So what are this? Goodwill समझ में आया? Patents and copyrights are nothing but you have done a design. You can take copyright on it. No one can copy it. Similar way, patent is nothing but you have done some invention. उसके लिए क्या आप patent ले सकते हैं so that no one can modify it. Clear? Understood? आप एक medicine invent करें समझो, उसके ऊपर patent ले लिए तो the rights will be with you only. आप एक book लिखे, उसके ऊपर patent ले लिए समझो, copyright ले लिए समझो, so आपके पास ही रहेंगे rights. Clear? No one can copy it. Understood? Did not understand? Clear? Like this it works. Any doubts ma? ये समझ में आया? What are tangible asset? क्या क्या दिख रहा है यहाँ? एक है intangible asset, वो जो नहीं दिखता बट रहता. Clear? Understood? Goodwill, patent, trademark, copyright, trade secret, ये क्या दिखता क्या? नहीं. But still they exist in the business. But tangible क्या? जो दिखने का चीज है. यहाँ पर आप कौन कौन से assets को देख सकते हैं? I can see AC, I can see TV, I can see board, I can see chair, I can see this table, I can see laptop, I can see keyboard, I can see that duster, I can see that what? Writing का marker pen. ये पूरे क्या है? Academic के assets है. कौन सा asset है? Fixed asset. And fixed asset में कौन सा asset है? Tangible. Like land and building. Next one is what? Plant and machinery. Next one is what? Furniture and fixtures. Land and building क्या होता? Academic का space. अगर ये independent था समझो, land और building भी. Plant and machinery क्या होता? Machines. This comes under plant and machinery. Sometime furniture and fixtures. This comes under furniture. Clear? Understood? Did not understand? So furniture and fixtures, office premises.
ये पूरे क्या हो गए? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. ये पूरे क्या हो गए? इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. एनी डाउट्स? Understood? Assets can be broken into how many types? One is fixed asset and another one is what? Current asset. Fixed can be broken into what? Tangible and intangible. Intangible is nothing but what? Goodwill, patent, trademark, copyright, सर्विस मार्क भी रहता. What is the difference between trademark and service mark? ट्रेडमार्क जो आपके गुड्स के ऊपर रहता. सर्विस मार्क इज नथिंग बट ऑन सर्विसेज. स्विगी का लोगो, जोमेटो का लोगो, फ्लिपकार्ट का लोगो, वो पूरे क्या? उनके सर्विस मार्क्स है. क्लियर? दे आर नॉट प्रोडक्ट बेस्ड नो, सर्विस बेस्ड है सब. क्लियर? करेंट असेट्स एक बताता हूं, उसके बाद में हो जाता. इन्वेंट्री. व्हाट इज इन्वेंट्री सर? इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक. क्या है मां? स्टॉक. व्हाट इज स्टॉक? मेरे लिए स्टॉक क्या है? आपका बुक्स जो है ना स्टॉक है, आपके यूनिफॉर्म्स जो है ना स्टॉक है. क्लियर? अंडरस्टैंड? इन्वेंट्री समझ में आया? स्टॉक क्या है? क्लियर? नेक्स्ट रहता डेटर. हु इज ए डेटर? Simple. If I am selling the goods, my customer is not paying money then and there. He told that what? He will pay day after or else later. This transaction is nothing but called as what transaction? Credit transaction. Cash transaction nahi, credit transaction. In this case, my customer is what for me? Debtor. I need to receive money from someone. That someone is going to be called as what? Debtor. Cash balance, bank balance. Now, what do you mean by cash balance and bank balance? Whenever I open this academy, मेरा कुछ गल्ला रहता ना, वो गल्ले में जो भी कैश रहता ना, that is my cash balance. Similar way, this is what your phone sir. phone में bank account रहता, right? In that account, how much money does ILT Academy have? That is called as what? Bank balance. Clear? That's it for the day. Any doubts ma? यहाँ पर समझ में आया? Clear? That's it.